السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز یہ آج سول سیکریٹریٹ سرینگرس مز پری بجٹ میٹنگ ہند سانز کرنا آو یت مز جنوبی کشیر ہندو ممبر اسمبلیو شرکت کر تت ممبر اسمبلی پلوم وحید رحمان پرہن میٹنگ حوالہ کت کران وونمت تمو پنن حلقہ انتخابن حوالہ وزیر اعلیٰ مکمل زان دژمژ تو ومید بجٹس مز یہ امیک خاص خیال تھاونہ سی ایم کی سربراہی میں پری بجٹ کنسلٹیشنز جاری ہے. آج ساؤتھ کشمیر کے ایم ایل ایز کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ ہمارے ساتھ ہے. وحید، پہلے یہ بتائیں کس طریقے سے میٹنگز رہی، کیا کچھ سامنے آپ نے رکھا، ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اس بجٹ سے اور کیا یہ مختلف ہوگا پریویس بجٹ سے؟ دیکھیے، ہماری امید ہے کہ جو کنسلٹیشن میٹنگ آج چیف منسٹر صاحب نے کی ہے کہ اس میں جو جینوئن ڈیمانڈس ہے پلوامہ کے حوالے سے وہ ہم نے رکھی ہے. چاہے ہاسپٹل میں ایم آر آئی کی ضرورت ہے، چاہے پلوامہ سے لے کر سری نگر جو روڈ خستہ حالت ہے بیکاز آف انڈسٹریل گروتھ سینٹر، وہاں پہ ایک سڑک کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 444 راستہ ہے اس کو کمپلیشن کی ضرورت ہے. باقی جو الائڈ سیکٹرس ہے ان کے حوالے سے جتنی بھی ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے آج ان کی نوٹس میں لائی، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے بجٹ سیشن میں یا جو فائنینشیل ایئر کا پلان بنتا ہے اس میں وہ سارے انکلوڈ ہو جائیں گے. اور یہ سارے مدعے ہیں کہ وہاں پر پانی کی قحط ہے، کہیں پر آپ کو اریگیشن کے حوالے سے کچھ ڈرافٹ جو بنیادی مسائل ہے ان کا آپ نے ذکر کیا ہے. پریویس بجٹ سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، کچھ آپ اس میں ڈفرینٹ دیکھتے ہیں جو عوامی مفاد کے لیے ہوگا یا مختلف اس بجٹ میں؟ دیکھیے، امید تو ہے، لیکن ایسا ہم نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں پچھلے بجٹ میں وعدے کیے گئے اس پر بھی ابھی عمل نہیں لایا گیا ہے، کام نہیں ہو پا رہا ہے، ٹینڈرنگ نہیں ہو پا رہی ہے. تو جو امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے ہمارے پاس، ڈگری پورہ ہے، رشی پورہ ہے، کئی سارے سڑکیں ہیں جو ویمنس پارک پلوامہ میں، ایسے امپورٹنٹ پروجیکٹس جو شروع ہونے چاہیے تھے ایک سال میں، ابھی تک ٹینڈر آؤٹ بھی نہیں ہوئے. تو وہ بھی ہم نے نوٹس میں لایا. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ سرکار کا اس پہ توجہ جائے گا، اور کچھ امپورٹنٹ جو پروجیکٹس پلوامہ کے حوالے سے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے، ہارٹیکلچر کے حوالے سے، ان پہ بھی سرکار تھوڑا بہت غور کرے گی. اپارٹ فرام کانسٹیچوئنسی وائز ایشوز، جب ہم جوائنٹلی دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے جو مسائل ہے جیسے ریزرویشن ہے، کیجول لیبرز کے ایشو ہے، ابھی جے کے پی ایس سی ایس ایس بی کے جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں، یا پاور پروجیکٹس کو لے کے مسائل ہے، یا جو سی ایم کے ڈومین میں ابھی ہے، جوائنٹلی ان مسائل پر کیا کوئی اتفاق ہوا ہے ایم ایل ایز کا جو آپ نے حکومت کے کہا سامنے کہ کینسر کا ایک بہت بڑا بحران ہے پوری ریاست میں اس وقت، کی کینسر کی ڈیتھس کی وجہ سے بہت یہاں پہ ڈیتھس ہو رہی ہے، تو اس کو سرکار کو ایک ڈیڈیکیٹ ہاسپٹل بننا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ جو ڈرگس ایڈکشن کے حوالے سے نوجوانوں میں کافی پریشانیاں ہیں، اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو پانی کی قلت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں نوٹس میں لائی، سجیشنز بھی دی. اور ریزرویشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ڈیلی ویجز کے حوالے سے بھی. اور ہمیں امید ہے کہ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے ہیں اس بجٹ سیشن میں دونوں مدعوں پر گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی. ایک تو ڈیلی ویجز کے جو مدعے ہیں، اور نوجوانوں کے حوالے سے جو ریزرویشن کا مدعا ہے. آپ پورے لوگ سڑکوں پہ بھی آئے کئی بار، تو ہمیں امید ہے گورنمنٹ اس کو ریشنلائز کرنے کی پوری کوشش کرے. آخری سوال وحید آپ سے رہے گا کہ جو مسائل آپ نے سی ایم کے سامنے یا گورنمنٹ کے سامنے رکھے پری بجٹ کنسلٹیشن میں، کوئی ایشورنس آپ کو ملی ہے کہ ان مسائل کو فائنل بجٹ میں شامل کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سجیشنز کو مطلب آن بورڈ لیں گے، اور ہم کوشش کریں گے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. تو ابھی تو ایک پروسیس ہے، ویل سی، وی آر ہوپ فل ٹل دا بجٹ سیشن کمز. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ بات کرے تھے گلستان نیوز کے لیے. عمران نائکو، ویڈیو جرنلسٹ نعیم کے ساتھ. یپر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائکن میٹنگ حوالہ کت کران وونمت تمو حلقہ انتخاب ترال کن مختلف معاملن حوالہ وزیر اعلیٰ زان دژمژ تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تمن یقین دتمت تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراونس حوالہ بجٹس مز خاص خیال تھاونہ. یہ اپنے کانسٹیچوئنسیز کے جو آج ساؤتھ کے ایم ایل ایز کی میٹنگ تھی، سی ایم صاحب نے بلائی تھی یہاں سے سیکٹریٹ میں ان کے آفس میں. تو اب میں نے بھی اپنی کانسٹیچوئنسی کے جو میری برننگ ایشوز ہیں وہ سی ایم صاحب کی نوٹس میں لائے. جنرلی ہم سب جو ساؤتھ کے جتنے بھی ایم ایل اے صاحبان ہیں، سب نے اریگیشن اور اپنا پی ایچ ای اور جو فروٹ ہے ہمارا ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر کے متعلق بات کی. تو سی ایم صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس سال جو پچھلے سال جو برف باری ہوئی تھی، برف باری اور جو سیلاب کی وجہ سے جو نیچرل کلیمٹی ہوئی تھی سپٹمبر، اس کی وجہ سے جو ہمارے ندی نالے ہیں اور جو ہمارے جو میوہ اس کو خراب ہو گیا تھا، اس کے متعلق سی ایم صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ جو اگلے سال 26-27 کا جو بجٹ ہے اس میں مین فوکس پہ یہ ہم سب کو یقین دلایا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے پری بجٹ ڈسکشن میں اپنی طرف سے جو پرائرٹیز فکس کی ہیں
यकीन है कि सीएम साहब जो उन्होंने भी बताया यहाँ पे उनके साथ उनके फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, तो उनका कहना था कि इस साल इसमें हम ज़रूर जो भी आपके जो प्रोग्राम है, जो आपकी जो डिमांड्स है वो ऑन बोर्ड लेंगे। तो लगता है कि शुमाली कशीर हंदिस जिले वरमलिस मज ये शीन पेन पत अक्सर इलाकन मज बिजली नायाब सपजम यम सतन इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तत जिले तरक्याती कमिश्नर वरमल अमे हवाले कत करान वोनमुत जिलस मज वतो पे शीन तुलनस बिजली सप्लाई बहाल करनस तो दोयम जरूरी सहूलियात बहम थवनस हवाले इंतजामिया मुतहरिक करना आमत युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन यल जन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरन बिजली सप्लाई हवाले कत करान वोन कईहन जायन पे तरसीली लानन सठा नुकसान सपदमुत ताहम महकम तरफ तरसीली लानन हिं शहर पर करनस हवाले काम जारी युत जन कम वक्तस मज बिजली सप्लाई मुकम्मल पट बहाल करने। देखिए, जो मेजर नुकसान बारामूला में हुआ है वो हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। अगर वादी कश्मीर की बात करें, कल हमारे पूरे डिवीज़न कश्मीर डिवीज़न में 4 132 केवी लाइन जो मेजर सप्लाई लाइन होती है डैमेज हुई थी पूरे कश्मीर में, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डैमेज हुए थे, पटन, शीरी और लोअर झेलम का। तो इसके कारण से आपने देखा होगा कल से पूरा डिस्ट्रिक्ट बिना पावर के है। अभी जो पटन और हमारी क्या कहते हैं दूसरी लाइन है शीरी लाइन, वो रिपेयर हो गई है, पर हमारी जो LGHP की लाइन है वो भी रिपेयर होना बाकी है, जिसके कारण से जो बारामूला टाउन और ओडी बिना पावर के है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि 11 और 33 केवी की लाइन डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न होती है करती है, जो 132 केवी की लाइन होती है वो जेके PTCL पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन रिपेयर करती है। तो उन्होंने अपनी स्पेशल टीम जो पामपोर से आई थी मोबिलाइज हो चुकी है, ERS भी मोबिलाइज हो चुका है ऑलरेडी, उसमें रात भर काम चला। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं शाम के 4-5 बजे तक वो टावर भी रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि पहली बार है कि पूरा टावर ही बकल, क्योंकि काफ़ी विंड्स ज़्यादा थी तो टावर पूरा डैमेज हो गया है, तो टावर को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ रहा है। तो होपफुली 4-5 बजे तक जो 132 केवी लाइन है वो रिपेयर हो जाएगी, जिससे जो हमारे बैलेंस फीडर है 33 केवी के और 11 केवी के फिर से चालू हो। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मोर देन 3000 किलोमीटर्स रोड है जिनको क्लियरेंस करना पड़ता है। तो इसमें आपको पता है कि हम प्रायोरिटी वाइज करते हैं, पहले नेशनल हाईवेज फिर मेजर रोड्स। तो आज शाम तक जितने भी हमारे लिंक रोड्स हैं, जो मेजर लिंक रोड्स हैं, वो साफ हो जाएंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक 132 केवी जो डेलना ग्रिड से शीरी जाती है, उसमें एक टावर कोलैप्स हुआ है। कोलैप्स नहीं, मतलब पार्शल डैमेज हुआ है, अपर पोर्शन ऑफ द टावर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टेशनस इफ़ेक्ट हो गए हैं और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे जल्दी हो सके ये पावर रेस्टोर हो जाए फुली। उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से आज शाम तक वो ये एक सर्किट रेस्टोर कर रहे हैं। वादी कश्मीर में कल बर्फबारी हुई, उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ। या यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे तेज़ आंधी की वजह से जो है यहाँ पे बिजली खंभों के साथ साथ तरसीली लाइनों को भी डैमेज पहुँचा। यानी कि पातला का जो इलाका है, यानी कि कनिसपुरा का इलाका है, वहाँ पे एक तरसीली लाइन जो है वो डैमेज हुई। यानी कि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुँचा। और ये बात काबिल ज़िक्र है, अगरचे यहाँ पे चंद एक इलाकों में जो है बिजली गुल है कल से। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD के उनके साथ हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे उन इलाकों में जो है इस वक्त काम यानी कि मरम्मत जो है वो चल रही है तरसीली लाइनों की, और इसके चलते जो है आज शाम तक जो है बारामूला में बिजली जो है वो रेस्टोर की जाएगी। हिसान हुसैन के साथ में इरशाद बट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। जम्मू कश्मीर मज ये मौसमी तब्दीली दौरान कईहन इलाकन मज बारिशीन पेन सत वत आमद रफ्त बापत बंद सब्ज तत श्रीनगर जोम कौमी वत आज दोम दह आमद रफ्त बापत बंद। यथ दौरान कैजगुंड तो दमपुर त्रामबनस मज कईया गाड़ि दरमांद वुचन आय। ये इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने सवाल कोशिश जारी है। तत इंतजामिया तरफ वत पे सफर कर वालन लूकन वन आमुद तिम गसन सफर कर ब्रो मुतलिक महकमे सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करने दौरान कुन किस्मिक मुश्किल वेतरीन पेन।
मौसम का बदलना और मौसम के बदलाव के बाद पहला विक्टिम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम डिगडोल के मकाम पर है, जहां आप देख सकते हैं कि बर्फ आप साफ सड़क पर देख रहे हैं। हालांकि यहां बर्फ को हटाने का काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी भी बानिहाल तक का स्ट्रेच है जिस पर बर्फ है और हटाने का काम चल रहा है। हालांकि ऐसे में हम कहें कि आज मौसम खुशगवार है। कल दिन भर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां रुकी हुई हैं। गाड़ियों की रफ्तार, जहां सैकड़ों गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरमांदा है, लेकिन अच्छी खबर अभी भी उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि खिली धूप है, लेकिन बर्फ अभी भी कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर है, जिस वजह से गाड़ियों की अभी हाईवे पर मुमकिन नहीं है। जो भी काम एजेंसीज हैं जो बर्फ को हटाने का काम कर रही है, वो अपने काम में जुटी हुई हैं, मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब हैं, लेकिन अभी बर्फ को हटाने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि आज मौसम खुशगवार है, खिली खिली धूप है, लेकिन इंतजार करना होगा कि कब रोड क्लियर हो, कब गाड़ियां इस हाईवे पर एलो की जाए। लेकिन फिलहाल जब तक बर्फ सड़क पर है तो गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पाएंगी, दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, और ऐसे में इंतजार करना होगा रोड को बेहतर बनाने का, रोड को मोटरेबल बनाने का, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है तरजीह बुनियादों पर उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत मिल। ट्रैफिक के हवाले से अभी तक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, क्योंकि मौसम आज खुशगवार जरूर है, लेकिन हाईवे पर अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। गाड़ियों की नकलो हरकत को अभी इजाजत नहीं मिली है कि गाड़ियां हाईवे पर मूव कर पाएं। अभी भी मुसाफिर कहीं परेशान है तो कहीं इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या अपडेट निकल कर आती है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हाईवे का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। खराब मौसम के बाद पैदा शुदा सूरत हाल रोड को मोटरेबल बनाने में दिक्कतें पैदा कर रहे, परेशानियां पैदा कर रहे हैं, और जहां आज खिली खिली धूप है लेकिन हाईवे बंद है। हाईवे की अपडेट अभी तक की हमने आप तक पहुंचाई है, मजीद क्या अपडेट है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। वादी कशीर मज ये मौसमी तब्दीली दौरान अक्सर इलाकन मज बारिशीन पेन सहित आम लोग सठई खुश वुचन तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठई खुश वुचन जन सयाह तरफ वन आव ये वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित माला माल तत शीन पेन सहित अत खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदन यम सहित सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। गाजियाबाद से आए हैं और कल बर्फबारी बहुत थी तो हमारी गाड़ी दब गई थी बर्फ के नीचे। आज थोड़ा धूप निकला है तो हमने गाड़ी निकालने की कोशिश की है और लगे हुए हमारे साथी भी गाड़ी निकालने में। और लोगों के लिए यही संदेश है कि कश्मीर आओ, बहुत अच्छा है, घूमो, यहाँ का लोग, यहाँ का स्टाफ सब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी निकाली जाती है एंटी स्किड चेन्स को लेकर के या गुलमर्ग के रोड की एडवाइजरी के हवाले से क्या? नहीं, यहाँ के प्रशासन को फॉलो करो, जो आपके लिए कहते हैं वो बेहतर कहते हैं। एंटी स्किड चेन गाड़ी पे लगाओगे तो आप ही के लिए खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जो प्रशासन कहता है उसको मान के चलो, आप सेफ रहोगे और मजे करोगे। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगर हल्की ताहम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद इस तरह के मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सयाह थे या मकामी लोग आए थे और बर्फबारी हुई है, और बर्फबारी के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो बर्फ़ के नीचे जो थी वो दबी हुई थी, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब सुबह सुबह जब धूप खिली है और धूप खिलने के साथ ही अब वो गाड़ी वाले जो है जो सयाह थे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी गाड़ियों से अब बर्फ़ हटाना उनने शुरू कर दिया है। अब ये माने कि वादी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, ताहम यहाँ पर बात करें इंतजामिया की तरफ से जो पहले ही एडवाइजरी निकाली गई है, जो भी सयाह गुलमर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए एंटी स्किड चेन्स को लाजमी करार दिया गया है। वही जिला इंतजामिया की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और सयाहों को और आम लोगों को बाज़ाब्ता यहाँ पर अवेयरनेस दी जा रही है कि गुलमर्ग में अब जाके उम्मीदें भी है कि बाज़ाब्ता सरमाई खेलों का इनेकाद भी किया जाएगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। जनूबी कशीर हिंद सयाती मुकाम पहलगामस मज ये मौसमी तब्दीली दौरान बारिशीन पे तत मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमत जन सयाहत सहित वाबस्त लूको तरफ वन आव तिमन उम्मीद शीन पेन पत इन ज्यादा खुद ज्यादा सयाह पहलगाम यम तिमन अन चोर जन्नुक मौके फराहम सपदे।
अल्लाह ताला का जिन्होंने पहलगाम में रहमत बरसाई है, कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है। इवन बहुत टाइम के बाद, मुझे लगता है 2 साल के बाद इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई है, और ये टूरिज़म के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत थी अभी पहलगाम के लिए स्नो। जी इंशाल्लाह अभी प्रेडिक्शन भी है 26-27 को भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, तो होपफुली और भी स्नोफॉल हो जाए, बिकॉज ये एक विंटर के लिए बर्फ़ गिरते ही कश्मीर एक अलग ही दुनिया बन जाती है, मतलब बहुत खूबसूरत हो जाती है पहले के मुकाबले। तो लेट्स होप कि और भी टूरिस्ट आए। अब थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है आना, बुकिंग्स आज मुझे लगता है आज कॉल्स वगैरह बहुत अच्छी है बाहर वगैरह से, स्नो के बारे में पूछ रहे हैं, बाकी हालात के बारे में पूछ रहे हैं, रोड जो बंद है उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो होपफुली इट्स अ गुड साइन फॉर टूरिज्म। मैं भी बर्फ़ पे बर्फ़, इंशाल्लाह पहलगाम में भी बर्फ़ पे बर्फ़ होनी चाहिए, और उधर गुलमर्ग में भी बर्फ़ पे बर्फ़ होनी चाहिए। दोनों चीज़ें टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं से रोज़गार चलना चाहिए, चाहे गुलमर्ग पहलगाम के लिए ज़रूरी था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कश्मीर टूरिज्म। ये जो फ्रेश स्नोफॉल अभी हुआ है, इसने कश्मीर को बहुत ही खूबसूरती से ढक लिया है, और हम इसका बेसब्री से वेट कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ डेफिनेटली उनको आना चाहिए, उनको ये जो खूबसूरती है कश्मीर की विथ स्नो, उनको ये देखनी चाहिए, उनको आना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी होटलियर्स हैं उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि हीटिंग्स और वादी कशीर इंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये हाली वाव तूफान सहित कईयान रिहायशी मकान नुकसान सपुद, तज जुनूबी कशीर हिंदिस चक अछबल अनंतनागस मज रोजन वलिस अब्दुल अहद वगी संदिस रिहायशी मकान सठा नुकसान सपुदमुत यम किन यह अयाल आवलिनस मज हेन आव। यल जन मुतासिर अयाल तरफ इंतजामिया मंग करना आई तिमन गस फूरी मदद करने युन युद्ध जन तिमन वंद रचन दौरान कुछ किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। रोजना अछल चक्कर पे रोजन नजार महला भाई भाई आज आओ ये वाव तूफान आ कि यथ तीन सोरे अंदर कन खोज वोच मगर वाव तूफान आओ यह नुन सोरे टीन वीन पाश वाश नुन थो तुल खोज अपील कर DC साहबस अस कतो तुथ हिसाब क्या यह जन करो ताकि ये वनकन गई मुश्किल वंद इन वोल मगर ये रहमत अत वमेदवार तो मगर ये तूफान वुच वन तान जन आज आव अस नश आए क्या युत आए मौका हमसाय आए रिश्तेदार आए मगर MLA साहब वोत वही मौका योर कहीं। चंद दिन पहले जो यहाँ वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल ने एक तबाही मचा दी, यानी कि जो तेज़ आंधी ने यहाँ पे लोगों के जो मकानात या और भी कई एसेट्स उनको ख़त्म कर दिया। वही अगर हम जुनूबी कश्मीर की अछाबल की बात करते हैं, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त अब्दुल अहद वगे के मकान पे, जिसका ये ऊपरी वाला जो पूरा ये छत है ये तेज आंधी ने अपने साथ उड़ा लिया। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। इनका ये कहना है कि हम इस वक्त मौजूदा सरकार के साथ साथ अपने मुकामी मेंबर असम्बली और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से मुद्दबाना अपील कर रहे हैं कि वो इस हवाले से आने वाले दिनों में जो महकमा हाजा है, जो मुख्तलिफ महकमा जात है, उनको हिदायत दे ताकि वो देखे कि नुकसान का वो तखमीना लगाएं, ताकि हम जो ये इस वक्त ये विंटर सीजन है, सरमा का सीजन, ये हम अच्छी तरह बसर कर सके। विद वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ तीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल अछाबल आनंद। वादी इंदन दोमिन इलाकन सान ये बडगाम किस खान साहब कन कईयान इलाकन मज बारिशीन पेन सहित आम जिंदगी मुतासर सपज तज सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटन अमे हवाले कत करान वोनमुत जे अल पल तमाम वतो पे शीन तुलना आमुत यल जन बिजली सप्लाई ते बहाल करना आई युद्ध जन आम लुकन राहत वातिय। कल के ही दिन जब पहले ही दिन हमने कोशिश की, जो हमारी लाइफ लाइन है बडगाम टू बुगरू, बुगरू टू रयार, रयार टू लानीलब, लानीलब टू गुरवेट, और गुरवेट से होते हुए रायथन, और रयार से लेकर आरिजाल तक जो लाइफ लाइन है, जो मेन लाइफ लाइन है, उसको थ्रो किया। उसमें वत्रहेल सिर्फ रह गया था क्योंकि उस पर काफी सारे दरख्त गिरे हुए थे, और वो भी आज हो रहा है। कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा, हमारे पास 355 किलोमीटर्स की लेंथ है, जिसमें हमारा जो पारनेवा है उसकी 148 लेंथ है, उसमें 67 किलोमीटर्स अभी तक क्लियर हो गए हैं,
इसी तरह से 208 किलोमीटर हमारा खान साहब की जुरिस्डिक्शन में आता है, उसमें भी 40 किलोमीटर अभी तक हो चुका है। हमारी 8 मशीनें इस वक्त जेसीबी इस वक्त काम कर रहे हैं, इसके अलावा MED की भी 2 मशीनें काम कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात, लोगों से सिर्फ ये मुदबाना गुजारिश है कि वो अपने नंबरदार और चौकीदार से जो भी आपके उनके मसाइल हैं उनके थ्रू फ्लैश करें। हम सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ खान साहब की जुरिस्डिक्शन में, करीब सुबह से 1000 लोगों ने 4-4 बार एक ही बंदा फोन कर रहा है हर जगह पे, कहीं पे ये प्रॉब्लम है, कहीं पे वो प्रॉब्लम है। मैंने कंसर्न BMO से जो ANC की लिस्ट थी जिनकी आज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थी, जिनकी आज कल परसों है, उन सभी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोगों से मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो सब्र तहमुल से काम लें, क्योंकि लिंक रोड्स में ज्यादा टफ है काम करना बनिस्बत की मेन रोड्स पे, क्योंकि लिंक रोड्स में हमको 3 गुना बर्फ ज्यादा मिलती है और हमारा JCB उतना कर नहीं पाता है। अभी हमारे दो JCBs एक ही स्पॉट पे सुबह से लगे हुए हैं और दोनों का फ्यूल खत्म हो गया और दोनों वापस आ गए हैं रिफ्यूलिंग के लिए और दोबारा से जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मौसम भी साजगार हो गया। अब ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सब अच्छे से हो। सभी लोग आज तक दुआ कर रहे थे कि देयर शुड बी क्योर फ्रॉम द सिक, वो फाइनली आ गया है। अब हमें अल्लाह का भी शुक्र करना चाहिए और अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है जिसको हम एट्रीब्यूट करेंगे कि ये स्नोफॉल या लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टच वगैरह की वजह से। अभी तक अगर हम देखें तो आपका कहने का जो लेवल 1 के रूट्स होते हैं, जो मेन रूट्स है उनको तो आपने थ्रू कर दिया है, अब लेवल 2 के जो रूट्स है उन पे आपका काम चल रहा है? हाँ, प्रायोरिटी 1 ऑलमोस्ट हो चुका है सारा। उसमें एक आध रोड जो हमारा शुरू की तरफ जाता है, हालसल शुरू, वो भी पेंडिंग है। रेस्ट ऑफ द लिंक्स पे काम चल रहा है और कुछ एरियाज तो हमने सारे के सारे, जैसे वतरहेल इनर है, उसमें सिर्फ गुलशन मोहल्ला और पुलिस स्टेशन के अगल बगल का एरिया है वो रह चुका है। बाकी सब जगह पे मशीनें लगी हुई हैं, फास्ट पेस से काम चल रहा है। इंशाल्लाह आज शाम तक 80% कवर करने का टारगेट है। इस दौरान कोई ऐसी इमरजेंसी कोई केस आपके पास आया जिसमें आपको दुश्वारियां हुई? वहाँ 2 डेथ्स कल रिपोर्ट हुई थी श्रीनगर में, जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन दोनों को हमने ऊपर वाले की मदद से उनकी लवाहिकीन तक अच्छे से पहुंचाया और दोनों का अच्छे से तजहीन तकफीन हो गया। हमारे से बात करें तो जरा मैं आपको ये विजुअल इस साइड में दिखाना चाहूँ। ये देखिए जहाँ पर इस वक्त में मौजूद है बुगरू का इलाका है, जो ऑपरेशन स्लो क्लियर से वो इस वक्त चल रहा है, मगर दुश्वारियाँ इनको इसलिए आ रही है कि कई जगहों पे जो है जो बर्फ की जो डेप्थ है वो काफी ज्यादा है, तकरीबन 3 से 4.5 फुट के बीच में जो है बर्फ की डेप्थ है। तो लोगों से LTM की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा एतमाद रखे और थोड़ा सा वो सब्र का मुजाहरा दिखाए, क्योंकि जिस तरह से बर्फ जो है तकरीबन 4 से 4.5 फुट के करीब पड़ी हुई है, तो जहां से हम जाते हैं वहां पर एक और दुश्वारियां इनको होती है कि जो रूफ टॉप्स पे जो बर्फ है वो भी सड़कों पे आ चुकी है, उससे कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा देखने को मिला और उसको हटाने में थोड़ी सी दुश्वारियां हो रही। मगर जो लेवल 1 के रोड है उनको जो क्लियर कर दिया गया, अब लेवल 2 के जो रोड है उन पे इस वक्त काम जारी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस ऑपरेशन में तेजी भी लाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जितने भी रोड है उनको क्लियर किया जाए, मगर लोगों से SDM साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा भरोसा रखे और थोड़ा सा वो हम ये कि सब्र का सब्र दिखाए, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई है कहीं ना कहीं सब लोग ये चाहते थे कि बर्फबारी हो और अल्लाह ताला ने हमारी वो दुआ कबूल कर दी, बर्फबारी हुई। अब थोड़ा सा लोगों को चाहे वो सब्र करे, क्योंकि जो रोडों पे बर्फ है उसका हटाने का काम कल से ही जारी है और कुछ दुश्वारियां हो रही है क्योंकि काफी ज्यादा जो पेड़ है वो गिर चुके थे रोड पे, उनको भी काटा जा रहा है। उसके बाद जो है आगे मशीनरी भेजी जा रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए खान साहब बडगाम से मोहम्मद अशरफ। 7 जनवरी तकरीब पेश नजर ये जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने आम तत शहर श्रीनगर में जाई जाई फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमत यथ दौरान गाड़ी वालन हज तलाशी हेन पत तो वत पकवन हज शिनाख्ती कार्ड चेक करने पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन।
यौम जमहूरिया का दिन नज़दीक है और ऐसे में अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी इस दिन को जो है जोशो खरोश से मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है यहाँ पर उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है जितना कि पूरे मुल्क भर में। वहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में भी इस दिन को जो है बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और मेन फंक्शन जो है वो यहीं पर होता है बख्शी स्टेडियम में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बख्शी स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को अलर्ट पर रख दिया गया है। किस तरीके से सिक्योरिटी इस वक्त जो है इसके इर्द गिर्द है, बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द है, अलर्ट पर है और साथ ही साथ बख्शी स्टेडियम को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया गया है। फ्लैग्स की बात करें तो फ्लैग्स भी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाए गए हैं, सजाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करते हैं, आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई ताकि 26 जनवरी को 26 जनवरी के लिए प्रिपरेशन जो है वो अभी से ही रखें और कोई प्रॉब्लम उस वक्त ना हो। वहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो हर जगह पर जो है श्रीनगर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट पर है, चाहे वो हम लाल चौक की बात करते हैं या बख्शी स्टेडियम की बात करते हैं, जहांगीर चौक की बात करते हैं या बाकी एरियाज की बात करते हैं श्रीनगर के अंदर, तो इस वक्त जो है सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी गई है ताकि 26 जनवरी के दिन कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इसलिए सिक्योरिटी जो है इस वक्त मजीद बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ बख्शी स्टेडियम को भी अच्छी तरीके से सजा दिया गया है क्योंकि अब 26 जनवरी आने ही वाला है, उसके लिए तैयारियां पहले से ही कर दी गई है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। तो नाज़रीन इस खबरनामा तुम रोज़ गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।